آپ ہی کلمہ پڑھا دیں, کل مفتی صاحب بھی پڑھا دیں گے, ایک ایپک چیز ہو جائے گی. ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں بھائی کے کلمے کو؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کچھ پتا نہیں ہوتا. سر آئی ایم ریڈی. کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں مطلب کہ مسلم گھر میں ہی کیوں نہیں, مطلب کہ میں نے برتھ لے لیا. کتنا جن لوگوں نے زندگی کو ٹھٹھا اور مذاق سمجھا ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. جن کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس کے بعد کوئی حقیقت ہے, جن کو اس چیز سے آگاہی ہے, آشنائی ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی. مفتی آگے بڑھیں, بہت دیر ہو گئی ہے ہمارے جی دوستوں کو. نیکسٹ کالر لے لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر ہے آدتیہ سنگھ. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے, آپ 5 منٹ کا اپنا کیس پریزنٹ کیجیے. ہیلو کیسر سر. ہیلو سر, کیا حال ہے آپ کا؟ جی سر, میں آپ کی اسٹریم پہ سے پہلے بھی آ چکا ہوں, اف یو ریمبر. جی آپ کا نام فیملیئر ہے, بالکل فرمائیے. جی میں نے اس پہ بات کی تھی نا, میرج والے ایشو پہ, پولیگیمی پہ. جی تو ویسے تو آج میں اسلام و فوکس پہ بات نہیں کروں گا, آج میں کچھ کانفیس کروں گا یہاں پہ, اس لیے میں آیا ہوں. مطلب کہ اسلام و فوکس تو ایک ٹائم سے میں نہیں رہوں گا, اسلام و فوکس تو نہیں تھا, لیکن ہاں اسلام سے مجھے تھوڑا سا اعتراض بہت ٹائم سے رہا, اور اسی اعتراض کو لے کے میں نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کر ڈالی. دا پاسٹ 6 منتھس آپ کہہ سکتے ہیں, 6 مہینے سے میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے, میرا بس فری ٹائم یہی ہے کہ اسلام کو ریسرچ کروں. اور بہت سارے یوٹیوبرس کو میں نے دیکھا, چاہے وہ سبیل احمد ہیں اور چاہے ون میسج فاؤنڈیشن رہا ہے, اور مینلی تو میں نے یوتھ کلب کو دیکھنا اسٹارٹ کیا. میں راجہ ضیاء الحق سر ایک ہیں, وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. تو محمد علی صاحب ہیں, راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں, ہاں علی احتشام ہیں, بالکل میں نے ان لوگ کو زیادہ سر سنا ہے. ہاں یوتھ کلب میں وہ, لیکن میں راجہ سر کو زیادہ سنا میں نے, راجہ ضیاء الحق سر کو. تو اب تو مطلب کہ اس اسٹیٹ پہ آ گیا ہوں میں کہ مطلب کہ میں یہ جان گیا ہوں کہ اسلام ہی جو ہے وہ ٹرو ہے. اس میں کوئی مطلب کہ مجھے تو اب نہیں لگ رہا ہے کوئی شک ہے اس میں. ماشاءاللہ. 2 قدم آپ کے رہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے پورے کرے. آپ نے ای میل بھیجی تھی, مجھے یاد آ گیا ہے, رائٹ؟ جی میں نے آپ کو میل کیا تھا. ہاں اچھا, اب جو باقی سینسٹیو باتیں ہیں وہ آپ پبلکلی آپ نہ کہیں, میرا خیال ہے. نہیں, میں وہ تو کبھی نہیں کہوں گا, وہ تو میں نے پرسنلی آپ کو کہا تھا. لیکن وہی میں نے کہا تھا کہ فیملیز کا ایک ایشو ہے اور نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن آدتیہ بھائی, سوری آدتیہ بھائی, پرائیویٹ لائف نہ شیئر کیجیے. صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بتا دیجیے گا. صرف ایک سوال, وہ یہ ہے کہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اسلام ٹرو ہے, تو آپ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سناتن دھرم سے ہے, یعنی ہندو فیملی سے؟ جی چھتریوں میں. ٹھیک ہے, کہا تھا چھید ہے, لوگ سنتے نہیں ہیں. جی آدتیہ بھائی, جی کیری آن. نہیں ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا, آئی ایم سوری. جی مطلب کہ ایک میں نے بہت ریگرس ایک ریسرچ کیا ہے, اور میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں. تو مطلب کہ میرا, اور مینلی یہ چیز میں بس ایک چھوٹا سا مختصر مطلب کہ چھوٹا سا بریفلی کروں گا کہ جو مینلی مجھ پہ افیکٹ آیا وہ میرا ایک دوست تھا, اس کا بھی نام عامر ہی ہے, وہ میرا بیچ میٹ ہے. ہم لوگ ساتھ میں, ہاں ہم لوگ روم میٹس ہیں ایک طریقے سے کالج میں. تو مطلب کہ اس نے جب وہ ایک ہوتا ہے نا آپ لوگ میں تبلیغی جماعت, مطلب کہ وہ بندہ اس میں چلا گیا, اس کی لائف میں نے 360 روٹیٹ ہوتے دیکھی ہے. اور اس کی لائف جب روٹیٹ ہوئی تو پھر میں ہو گیا پریشان. میں نے کہا یہ بندہ میرے ساتھ گھومتا پھرتا تھا, ہم لوگ بیئر پیتے تھے, ہم لوگ پارٹیز کرتے تھے, ہم لوگ کی گرل فرینڈ تھی, دونوں انجوائے کر رہے تھے لائف کو ہر طریقے سے. اور وہ بندہ ایک دم بالکل ہٹ گیا, ایک دم اس کا مطلب کہ پورا ایک لائف چینج ہو گیا, اور میں پریشان. میں نے کہا یہ بندہ میرا دوست ایک ایسا ہوتا جا رہا ہے, اور میں اپنی وہی پرانی لائف میں انجوائے کر رہا تھا ایک دم بڑھیا سے. پھر دھیرے میں نے اس سے پوچھا, یار کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کرتا ہے, تو ساتھ نہیں بیٹھتا, موویز نہیں چلتا ہمارے ساتھ, پب نہیں چل رہا ہے, بیئر ویئر بھی چھوڑ دی, سگریٹ بھی نہیں پیتا, اور بریک اپ کر لیا, کیا چل رہا ہے یہ تیرے لائف میں. تو اس نے مطلب انکریج کیا کہ یار تو ایک بار ٹرائی کر. مطلب کہ ویسے میں اتنا ہارڈ کور فالوور کبھی نہیں رہا ہندوازم میں, مطلب کہ مجھے ویسے بھی وہ سب بکواسی لگتا تھا اسٹارٹنگ سے, کہتا نہیں تھا گھر پہ, لیکن وہ سب لگتا تھا کہانی قصے ہیں. اور مطلب کہ بہت ویسے بھی زیادہ تر ہندوز فیملی کیا ہوتی ہے, بہت لبرل ہوتی ہے, بہت لبرل رہتی ہے. مطلب کہ ایسا کچھ نہیں کہ نہیں کرو گے تو کچھ کہا جاتا ہے گھر میں, ایسا کچھ کہا بھی نہیں. کلامی کی معذرت, یہ جو آپ نے بعد میں قصے کہانی کہا ہے یہ کمپیریٹیولی بہتر لفظ ہے. یہ میری انالیسس ہے, میں کسی کی نہیں, میں صرف آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہارش ہونا کبھی میرا رہا ہے کہ مجھے وہ فیل نہیں ہوا.
और फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। मतलब कि मैं तो ये था कि मुझे इसे रॉन्ग प्रूफ करना, अपने दोस्त को वापस लाना है मेरे जैसा था वो पहले से वो वैसा हो जाए बस मेरे साथ, वैसे एंजॉय करे। मैंने रूम चेंज कर लिया, वो एकदम बदल गया। मैंने कहा ये फिट ही नहीं हो रहा है मेरे साथ। म्यूजिक नहीं बजाने देता था लाउड रूम में, और कुछ भी नहीं करने देता था, पार्टी नहीं करने देता था। मैंने कहा यार रूम चेंज करो। बोरिंग हो गया। हाँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और फाइनली अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कि मुझे अब तो नींद आना बंद हो गई है क्योंकि अब मुझे जो पता चल गया कि ये चीज़ सही है और ये मेरे पास है नहीं, और मैं हो गया हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब मेंटली कि मुझे ये चाहिए किसी भी हालत में। तो फैमिली वैसे मैंने बोल रखा है, लेकिन घर में तो वैसा कोई सीन है नहीं। मम्मी पापा दोनों जो है ना कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाइफ का कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं। और कुछ ऐसा ही अगर कुछ हो गया मेरे साथ तो मुझे बहुत टेंशन हो जा रही है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता कि दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी अगर थोड़ा न्यूट्रल होकर चीज़ों को समझेगा ना, तो लगेगा वो बात आएंगी, लेकिन न्यूट्रल होना पड़ेगा पहले आपको। अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे, ओपन हार्टेडली अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं, ओपन माइंड नहीं करेंगे, कुछ नहीं आने वाला वो। तो फिर आप वैसे ही हो रहेंगे हमेशा, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, लूप में रहेंगे। मैं स्ट्रीम बहुत ज्वाइन कर सकता, लेकिन मैंने लोगों के क्वेश्चन सुने, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बोलने से। पहले आप सुने, समझें, उसको एनालाइज करें, उसको रिसर्च करें, फिर बात करें। ऐसे ही बता के एक ही पे ऊपर लूप पे लूप, एक ही क्वेश्चन लूप पे लूप, मतलब कि वो रिपीट कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। सुनो, आप पहले चीज़ों को समझो, रिसर्च, अपने खुद का दिमाग यूज़ करो। कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, रहने दो, उसको साइड में रखो, खुद रिसर्च करो। अच्छा, ऐसा है आदित्य भाई, मैं ईमेल तो मेरा आपका मेरे पास है, मैं आपको ईमेल भेजूंगा, क्योंकि जिस स्टेट से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में बहुत से लोग इससे गुजरते थे कि फैमिलीज उस तरफ हैं, दिल उस तरफ है, तो उसका कुछ तरीक़ाकार है कि इस्लाम ऐसी सिचुएशन में क्या उसको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे तो पब्लिकली तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली मैं आपको ईमेल भेजूंगा। मुफ्ती यासर साहब से आपकी बात भी करा दूंगा। आप ये कदम उठाएं। मैं राजा ज़िया साहब से उस दिन मेरी उनके साथ पॉडकास्ट भी हुई है, मैं उनको स्ट्रीम में भी लेके आऊँगा कि आप उनका नहीं बल्कि वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनकी आखिरत का सामान बने हैं। नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का थैंकफुल हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कभी आती नहीं। जैसे मेरी लाइफ चल रही थी, शायद वैसे ही चलती रहती, और डबल स्पीड चलती, और स्पीड बढ़ती मेरी इस सब चीज़ों में इंडल्ज होने की, क्योंकि कभी किसी चीज़ की कमी रही नहीं है लाइफ में, सब कुछ रहा है, तो वो एंजॉय बढ़ ही रहा था लाइफ में, वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है वो टेंशन एक तरीके से होती है, रात में होती है, रात दर्द सोते वक्त, यार नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इसको बदलना पड़ेगा। और लाइफ का ये तो मीनिंग नहीं हो सकता कि बस आ गए हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब करनी है, शादी करनी है और मर जाना है, ऐसा ये ना, ये तो नहीं हो सकता। कुछ बिगर पर्पस होना ही चाहिए लाइफ में। ये सब तो फॉल्स है, सब कुछ गड़बड़ है। ये वही है। अब तो मैंने ये अपना माइंड सेट कर लिया है कि अब फैमिली नहीं भी तैयार होगी तो मैं करूँगा, क्योंकि पता नहीं, मुझे बहुत डर लगने लगा है। मतलब कि मैं ये बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे डर लगता है कि मेरा अगर मुझे कभी कुछ हो गया मेरे साथ और इस तरह से, पता नहीं, अगर आप मौका था और मुझे हमेशा अफसोस होगा। एक बात बताएं, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि आप ज़हनी तौर पर तैयार भी हैं, आपने करना भी है, और उसके पीछे वजह भी बहुत सॉलिड है कि ज़िंदगी का पता नहीं होता। Then why wait? Why not do it? वेट सर, मैंने आपको वो मेल में लिखा ना सर, वो एक फैमिली का एक प्रेशर है सर, आप समझ रहे हैं सर, एक फैमिली का प्रेशर होता है, माँ बाप का एक है, पेरेंट्स का लगाव है, लव है, वो इमोशनल कर देते हैं कि वो इमोशनल कर देते हैं। ईमेल में ही इसका फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि इस सिचुएशन में फिर व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे कि आप समझ के, सीख के, चीज़ों को पेनिट्रेट करके आप यहाँ तक आए हैं। अभी एक मेरा फ्यूचर का गोल भी यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग में जॉब के साथ एक डाई का काम भी करना पसंद करूँगा, मतलब स्प्रेडिंग इस्लाम। अगर और मुझे आप हमसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो पता नहीं सर, अभी तो सब कुछ बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ही पजल्ड है और बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेट है मेरे लिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, रहेंगी इंशाल्लाह, हम सब की रहेंगी। आप इसमें मज़ीद मैं चीज़ में नहीं कहूँगा, इसलिए कि आपने वो ईमेल मुझे भेज दिया ना, आई रियलाइज दैट इट्स अ सेंसिटिव इशू। इंशाल्लाह अज़ीज़,
मतलब कि मैंने इस्लाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं देखा जिसका आंसर अवेलेबल ना हो, ऐसा एक अल्लाह। क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जिसका आंसर, कि हर चीज का एक क्वेश्चन है और वो सेटिस्फाई करता है आपको। ऐसा नहीं है कि बस आंसर दे दिया, वो फिट बैठ रहा है कि हाँ ये सब चीजें जरूरी हैं। ये फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर तरह की गंदगी बढ़ती जा रही है, ये सही चीजें नहीं है, ये फिट ही नहीं हो रही है। और मैंने उस लाइफ को काफी हद तक एंजॉय किया है और मुझे पता है कि वो कुछ नहीं है, वो टेंशन देती है। ड्रिंक करो, कुछ भी करो, सब चीज बहुत गड़बड़ है लास्ट में आके, वो आपको मेंटली जो है वो डिप्रेस करेगी लास्ट में आके। देखें, मेरी अपनी एक saying है कि रब के निज़ाम में इंसान जब करप्शन करता है तो उसकी कम से कम सज़ा ये मिलती है कि इंसान के अंदर का सुकून ख़त्म हो जाता है। और ये कम से कम सज़ा है कि हक अपने मरकज़ से जब हटा दिया जाए तो उसका एक रिपरकशन हुआ करता है। और जब इंसान का इनर सेल्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है आउटसाइड हमारे ऊपर अल्लाह ताला के साथ, जब हम उससे हटते हैं तो एक खलीज, एक गैप पैदा होता है और वो गैप फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है, बेसुकूनी से भरा हुआ होता है, जो आप कंडीशन बताते हैं कि रात को डेफिनेटली सोने में होता है, दैट्स द फीलिंग यू गेट। तो जब वो आपका इनर सेल्फ आउटर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाएगा, उस हक को आप मान लेंगे जिसे आप दिल से तो मान चुके हैं, जुबान से मान लेंगे। सर वो क्या होता है ना, एक पीस नहीं होता दिल में सर। वो मैं मूवीज देख रहा हूँ, अपने आप को मतलब कि इस चीज से हटाने में म्यूजिक सुन रहा हूँ लाउड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, चलो कुछ आउटिंग करते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन वो होता है ना जब आप रात में, वो जब सोने का टाइम होता है, आधे घंटे जब आप अकेले होते हैं, जब लगता है यार कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब चीजों से भागने का कोई फायदा नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी। कांट रन। वही वो टाइम है जब आप अल्लाह ताला से बातें करना शुरू करते हैं, और ऐसे करें जैसे अल्लाह आप ही का है, सिर्फ आपका है। तन्हाई में उससे बातें करें। आप यकीन करें कि जो इंसान के दिल से उस वक्त जो आंसू निकलते हैं वो आंसू नहीं होते, वो छोटा सी ये जो बैरियर्स होते हैं ना, जो उसको सही रास्ते पे आने से रोक रहे होते हैं, उसके गुनाहों की एक कालिक होती है, उसके अंदर की एक सेंस, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो बाहर आती है। और मैं इससे गुजर चुका हूँ। आमिर भाई तो मुझसे भी 2 कदम आगे जाके वापस आए हैं। मैं खुद भी उस जगह से, मेरी जो इवोल्यूशन हुई है वो उस जगह से हुई है जहाँ पे इस्लाम को सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, वेस्ट में, यूरोप में। और उस वक्त में वहाँ पे गया जब 9/11 हो चुका था, हर तरफ इस्लामोफोबिया फैला हुआ था, इस्लाम में गाली बन चुका था लोगों के लिए। तो हमने वो भुगता सारा, वो देखा अपनी आंखों से, गालियाँ सुनी अंग्रेज़ों की, सारा कुछ कि तुम्हारा रिलीजन ये कहता है, वो कहता है। वहीं से इसको पढ़ने का शौक हुआ था कि हमें तो ऐसी बातें किसी ने नहीं कही। पहले तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा था जैसे सब पढ़ लेते हैं, ठीक है मुसलमान है, एक बस छाप लगी हुई थी, बस बात खत्म। वो जो दोबारा दौर था वो यही था। तो वो जो आंसू है ना तन्हाई में, जब इंसान अपने रब से बातें करता है, उसके बाद जो इंसान को अल्लाह ताला देता है वो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, आपकी बातें मेरा जज़िया साहब तक भी पहुँचाऊँगा। तो अब मेरी दुआ है। उनका तो मैं बहुत ज़्यादा फैन, उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर को एक तरीके से पोर्ट्रे किया ना, मतलब इतने बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे किया, मज़ा ही आ गया। मतलब उनको सुन के कि क्या नॉलेज है उनकी और किस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि सही बात, ये चीज़ें फिट ही नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें गलत चल रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही जो है इधर तरफ हमारे एशिया में आ रहा है, वो इंडल्ज हो रहा है, उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है देखा जाए तो। ही इज़ बेस्ट। और वो भी उस तरीके से मैंने उनको सुनना ही इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो पहली बात तो उस तरीके के इंसान नहीं थे, वो एक अलग लाइफ से आए थे। और फिर मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, फिर एक के बाद नए यूट्यूबर्स दिखते गए मुझे। मैंने सब, मेरा पास टाइम यही हो गया, मैंने कॉलेज आना, क्लास करना, असाइनमेंट करना, उसके बाद लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल के कोने में बैठ जाना। लोगों को लग रहा है ये पढ़ रहा है, लेकिन मैं यही रिसर्च करता रहता था कि यार ये है क्या, इसको जानना है। धीरे धीरे करते उनका पास्ट भी काफी मिलता जुलता है ना, वो भी ऐसे ही सारी इंडल्जिंग लाइफ, ये वो सारा कुछ वही करते थे। But there comes a time in हमारे पास सर, जैसे कि मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हूँ सर, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है सर, तो हम लोग को वही चीज़ ही मिल जाती है करने को। कुछ सिखाया गया नहीं, कुछ बताया गया नहीं, पूरी फ्रीडम थी घर पे, जो करना है करो। और कॉलेज लाइफ में आके कुछ, जब आपके पास कुछ गाइडेड पाथ नहीं होगा ना, तो आप फ्री हो जाते हैं। और फ्री इंसान वही करता है जो उसका दिल करता है। तो सब कर रहे थे, वैसे मैं भी कर रहा था, नथिंग न्यू। ये पूरा एक जनरेशन हमारी है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे।
یہ بھی اسلامی Yes, sir. Thank شعار you. میں سے ایک ہے کہ آپ لوگوں کی زحمت کو کم سے کم کرے. باقی لوگ ویٹ کر رہے ہیں. ارے میں نے ان کی جو سر ان کی میں نے سوچ لی میں نے تو- ڈرنکنگ بند کر دی. میں نے پب جانا بند کر دیا ایک دم سے. میں نے بریک اپ کر لیا ہے. میری گرل فرینڈ پریشان ہے کیوں بات نہیں کرتے. میں نے کہا نہ ہو رہا ہے مجھ سے اب ٹھیک ختم. سب غلط ہے. نہیں اب وہ دل نہیں گوارا کر رہا ہے مطلب کہ نہیں انشاءاللہ آدتیہ بھائی آپ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں جو بھی اسٹوری ہے ماشاءاللہ انسپائرنگ ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو بہتر رہے گا. باقی انشاءاللہ آپ دوبارہ کبھی جوائن کیجیے گا. ابھی ٹائم کی قلت بھی ہے میں کلمہ اور پڑھوں ضرور گا آپ کی بالکل تمام پڑھوں گا. باتیں سنیں. میں اگر کل یاسر صاحب نے سر نے کری اگر وہ انہوں نے اسٹریم تو میں ضرور جا کے ان سے کہوں گا کہ آپ ہی جو ہے مجھے پڑھا دیجیے. میں ویٹ نہیں اور کر ہم سکتا سب سر. میں بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوں اس چیز کے لیے. اب مجھے نہیں لیکن پتا کیسر جو ہونا ہے بھائی ہوگا. جی اختی کیسر کچھ بھائی کہہ رہی میری ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنی سانس کا پتہ نہیں ہوتا. اگر بھائی آج ارادہ کر کے بیٹھے تو آپ بھی کلمہ پڑھا دیں. کل مفتی صاحب بھی پڑھا دیں گے. ایک ایپک چیز ہو جائے گی. ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں بھائی کے کلمے کو؟ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نہیں. کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی پڑھ لیں. ایک چیز کلیئر ہو جائے اس کے بعد آپ مفتی یاسر صاحب کے پاس دوبارہ آپ پڑھنا چاہیں. ایبسلیوٹلی سر آئی ایم ریڈی. عامر بھائی would you take lead on this sir? It overwhelms me. میرے شاید وہ سن نہیں پا رہے. میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے گا. اوکے سر. بسم اللہ. سر ایک بار اور. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم 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 الرحیم. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور بہت رحمت والا ہے. تو میں چاہتا ہوں ساتھ آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اشہد. سر تھوڑا دھیرے دھیرے بولیں گے. اشہد اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ لہ واشہد واشہد ان ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. Welcome to Islam, brother. Thank you. That's what it is the culmination of the epic journey that you went through. یہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں سر انگلش میں تو میں نے اس کا میننگ دیکھا ہے. چلے دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. میں راجہ صاحب سے میں رابطہ کروں گا ابھی اسٹریم کے دوران. ان کی ٹیم سے رابطہ کروں گا, ان کو بتاؤں گا. لیکن اس کے بعد اب میں آپ کو پیار سے محمد کہہ رہا ہوں. نام اپنے لیے آپ جو چوز کریں. یہ میرا پیار ہے کہ میں آپ کو اب محمد میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات کے بعد مجھ سے بہت زیادہ بات ہوتی نہیں ہے. تو میں بہت معافی چاہوں گا. It's difficult for me to contain myself. سر میں شام سے ویٹ کر رہا تھا آپ کا. میں نے چیک کیا کہ آپ لائیو کریں گے کہ نہیں کریں گے. مطلب کہ میں پریشان تھا. آپ نے پچھلے ہفتے لائیو نہیں کیا. میں ویٹ ہی کر رہا تھا. آپ لائیو نہیں کریں گے اور یاسر سر بھی نہیں آئے لائیو کرنے کے لیے. لیکن میں بہت ڈیسپریٹ تھا. پورا ویک میرا بس ایسے ہی گیا ہے کہ کلاسز میں نے کی لیکن میں نے کہا تھا کہ جلدی سے جو ہے لائیو آئیں تو میں اپنی بات کہوں ان سے. اور آج لائیو آپ آ گئے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. گواہ رہیے گا حشر کے میدان میں کہ جب ہم پہ مشکلیں پڑیں تو آپ ہی آگے بڑھ کے کہیں کہ اے رب یہ گناہگار ہی صحیح ہے, یہ سیاہکار ہی صحیح ہے, لیکن یہ وہ ہیں
जो तेरे रास्ते पे मुझे लेके आए थे। और मुझे यकीन है कि आपकी ये गवाही हमारे सारे गुनाहों को पे भारी पड़ेगी, सारी सियाहकारियों पे भारी पड़ेगी। जैसे लोगों से भी ये काम लेता है। इमेजिन दैट। आमिर भाई थोड़ा सा प्रोग्राम कैरी ऑन करेंगे आप लोग? मैं इकबाल, मुझे इस वक्त याद, क्योंकि इनकी जो बात इन्होंने की है वो मैं काफ़ी हद तक अपने से रिलेट कर पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक टाइम जो है मेरे ऊपर गुजरा है, जो जिसका नक्शा इन्होंने खींचा है कि ये जो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और जो आप ईमान के लिए, अल्लाह की तरफ लपकने के लिए जो डेस्परेशन होती है, तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। बस इकबाल कमबख्त मुझे इस टाइम पे याद आ रहे हैं। है अयां योरश तातार के अफसाने से, है अयां योरश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। सर कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि मैं मतलब कि मुस्लिम घर में ही क्यों नहीं, मतलब कि मैंने बर्थ ले लिया, कितना इजी हो जाता मेरे लिए सब चीज़ें। आते हैं ऐसे थॉट सर कभी बस क्योंकि हकीकत ये है कि एक प्लान आप सोचते हो, एक प्लान अल्लाह की ज़ात सोचती है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर, मैंने कभी लाइफ, मतलब कि मैं 22 ईयर्स का हूँ इस समय, जस्ट 22 ईयर्स, और मैं इतना एंजॉय कर रहा था लाइफ को। मैं प्रिटी गुड स्टूडेंट भी हूँ, मैं बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ इंडिया के, मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी कुछ होगा लाइफ में कभी मेरे साथ। जो टाइम आप ऐसा अपनी यू एज, टर्न लिया है मेरी लाइफ ने, जो आप बयान कर रहे हैं ना, मेरी एज भी बिल्कुल यही थी। और जो जिंदगी आपने बयान की है, इससे कहीं आगे की जिंदगी मैं सोच के और चीज थी। मगर एक चीज आप सोचते हो, एक अल्लाह सोचता है। एक प्लान आप करते हो, एक प्लान वो करता है, और उसी का प्लान गालिब होकर रहता है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें अपने साथ होते ऐसी देखी हैं जिनका कभी इरादा नहीं किया था, मगर वो हुई, और उन्होंने होकर ये बताया कि ये अल्लाह का काम है, ये इंसान की कोशिश नहीं थी। और ये बातें जितनी सादा हैं उतनी पेचीदा हैं। अगर कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जिससे अल्लाह मोहब्बत कर लेता है, जिसको अल्लाह चुन लेता है, उसके सीने को फिर कुशादा कर देता है, उसके लिए बातें आसान होती चली जाती हैं। और अल्लाह ने आपके लिए, जिस तरह आपने बयान किया ना चीज को, मैं इतना रिलेट कर रहा था उस चीज से कि कोई वक्त था कि कभी इस्लाम की समझ नहीं आती थी, और एक वक्त ऐसा है कि अब चीजें क्लियर होकर नजर आती हैं तो पता चलता है। तो अल्लाह के फजल के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अल्लाह के फजल के अलावा कुछ भी नहीं। कभी ये कमाल नहीं है किसी का कि मैं अपनी जात की वजह से इस हिदायत को हासिल कर लूँ। हाँ, कोशिश इंसान करता है, उसका दखल है, मगर इसका जो अल्टीमेट क्रेडिट है वो अल्लाह की जात, अल्लाह के फजल को जाता है। अल्लाह का फजल था जो आप पर हुआ, और अल्लाह ताला आपको इसकी इस्तकामत दे। आप इसी तरीके से चीज़ों को समझें, जानें, सफ़र शुरू करें। और जो आपने बात की ना कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, हकीकत यह है ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि इंसान अपने खालिक से दोबारा मिल जाए, उससे बिछड़ा हुआ। आप ऐसे समझे ना कि जैसे उस माँ की हालत आप समझे, या उस बाप की हालत समझे कि जिसके बच्चे बचपन में उससे अलग हो चुके हों, उससे बिछड़ चुके हों, और कई सालों के बाद वो उसकी आंखों के सामने आए, उस माँ के सामने वो बच्चे आए, जो उन बच्चों से मिलकर उस माँ की हालत होती है, एक खालिक व मखलूक के साथ मिलकर इस रिश्ते, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर की बात। जिन लोगों ने जिंदगी को ठट्ठा और मजाक समझा है, उनको ये बात समझ नहीं आएगी। जिनको इस हकीकत का इदराक है कि इसके बाद कोई हकीकत है, जिनको इस चीज से आगाही है, आशनाई है कि इसके बाद एक ऐसी जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होनी, उनको इस दर्द का एहसास, उनको इस हकीकत का पता है। बाकी मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे, आज कर रहे हैं, कर लें। जिसको इस हकीकत का इदराक हो गया वो नहीं हंसता, जिसको समझ आ गई है कि मर कर किसी के सामने खड़े होना है, वो नहीं हंसता। वमन कान यरजू लिका रब्बिही, वमन कान यरजू लिका रब्बिही, जिसको ये उम्मीद है कि वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा, वो अल्लाह पर ईमान ले और नेक अमाल करे।
तो ये वो मोहब्बत किस होते हैं मेरे भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हिदायत हर किसी के बस की बात होती तो इधर लाइन ना लगी होती। कमाल करते हैं। अल्लाह ताला आमिर भाई आपको बहुत जज़ा दे। इट्स अब मुझे पता है जो बाकी स्ट्रीम है हमारी अब सुपर चार्ज होने वाली है। अब जिसने बात करने के लिए आना है, ओके दैट्स नॉट इवन कंप्लीट द सेंटेंस। सर आपको मैं एक बस छोटा सा कल मतलब जी, सर मैं यूट्यूब पे रात में 2 बजे सर मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि सलाह कैसे मतलब कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, मुझे कुछ नहीं पता और मैं ऐसे ही बैठ गया हूँ लाइट वाइट बंद करके कि मतलब कि बस मुझे नहीं पता क्या मतलब कि बस बैठ के बस प्रे कर रहा हूँ कि बस अब मुझे बस मुझसे नहीं हो रहा है, उसमें से मुझे बाहर आना है बस इस लाइफ से, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मेरे मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे मेरे एक स्टूडेंट थे, मैं यूके में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में मैं लॉ पढ़ाता था मैं, तो आइजक नाम था उनका, लेकिन मुझे पता नहीं था वो मुसलमान थे। तो वो एक बांग्लादेश का लड़का आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो फिर मैंने अखलाकन बताया, मैंने कहा आइजक ये हम मुसलमानों का ये ग्रीटिंग्स होती है। तो उसने हंस के कहा मैं खुद मुसलमान हूँ। मैंने कहा यार आइजक आपका नाम है, मुझे गेस नहीं हो सका। उन्होंने कहा वो मेरे पेपर्स पे लिखा हुआ तो वो ऐसा ही था। खैर उन्होंने अपनी बात बताई, कहते हैं कि मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया अपनी ज़िंदगी में, क्रिश्चियन थे वो पहले, तो मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया, इन लोग मुसलमानों की नमाज़ें देखी, मुसलमानों के दीन को पढ़ा, सब कुछ देखा। सारा कुछ करने के बाद कहते हैं कि एक दिन 10 साल गुजर गए, जब मुझे एक दिन मैं घर आया, थका हुआ था, हाथ धोने लगा, तो हाथ धोते धोते मुझे ख्याल आया कि हाथ मुंह धोना, जब बंदा बाहर से आता है थका हुआ होता है तो वो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो वज़ू कर रहा हूँ, यानी मुझे गैर इरादी तौर पे मैं कुल्ली भी कर रहा हूँ, मैं सारी इनकी जो वज़ू के हैं अरकान फ़राइज़ और सुन्नतें मैं वो कर रहा हूँ। मुझे वहीं से लगा कि शायद अल्लाह ताला ने कहा है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब नहीं। तो कहते हैं फिर मैंने उसको वज़ू ही पूरा मैंने किया और फिर मैंने जाके अंदर जिस तरह से मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं मैंने इस तरह से मैंने वो सारा कर लिया, फिर कलमा पढ़ा, सारा कुछ किया, वो और बात है। तो जो आप बात बता रहे हैं मुझे उनकी बात मेरे जहन में आ रही है कि समटाइम्स इट्स दैट कॉलिंग, कि रात को 2 बजे लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, एंड देयर यू आर सर्चिंग फॉर योर रब, सर्चिंग फॉर योर लॉर्ड, एंड लेस देन 24 आवर्स लेटर हियर वी आर। अब तो सर बस ये है कि सर मुझे इस्लाम को ज़्यादा डीप में समझना है और अब बहुत मतलब मुझे बस इसी चीज़ में अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट करना है और एक मैसेज स्प्रेड करना है, लोगों को भी समझाना है कि आप समझें इस चीज़ को। आप अभी ईमेल जो है मैं आपका शेयर कर दूंगा मुफ्ती यासिर साहब को भी, आमिर भाई को भी। अब जितनी भी आप दीन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं और उसकी चीज़ें हैं, आप राब्ते में रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ योर ब्रदर्स आर गोइंग टू बी विद यू थ्रू एंड थ्रू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप तशरीफ लाए, मैं इंशाअल्लाह थैंक यू कि आपने हमें ये मौका दिया अपनी ये स्टोरी सुनने का और मेरे ईमान को ताज़ा किया। अल्लाह इसका भी अजर आपको देगा इंशाअल्लाह। इसका टिप है माउंटेन की सर, ये टिप है माउंटेन की सर। लास्ट 6 मंथ सर मैं जानता हूँ सर मेरा कैसे गया, मेरे सेमेस्टर खराब हो गए चक्कर में, मेरे सीपीए गिर गए। कोई बात नहीं, ये यहाँ जो गिरा है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम पर आपने जो खजाना दरियाफ्त किया है, ये खजाना दुनिया व माफिया से बेहतर, ये कई दुनिया के खजानों से बेहतर जो आपको तलाश हो गई है जो चीज़, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा दूसरे मामले उसमें जारी रखें। थैंक यू सर, दिल की गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब ईमेल पे इंशाल्लाह आपसे मैं राब्ता करूँगा। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ में रखे, आपकी ख़ानदान की जो फैमिलीज़ इश्यूज़ आपने बताए वो रिजॉल्व करे। अच्छा मेरे साथ नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।